future is to create it. Take a move. Create a future. Join Shobit University. As a young citizen of India, armed with technology, knowledge, and love for my nation, with a vision of transforming India into a developed nation, I'm joining Shobit University. What about you? Namaskar and a very good afternoon to you all. Respected speaker of the session, deans, HODs, faculty, students, participants. I, Dr. Gunjan Agarwal, Professor and Dean, School of Liberal Arts and Languages. I welcome you all at this virtual platform of co-learning webinar. Today's topic, Unleash the Success Within, is well chosen and applicable to all. In this universe, every person wants to get success. And the idea of success is very vast and also complicated. And this varies from person to person. You know, we have so many examples of success. People define success in their own manner. American poetess Emily Dickinson wrote, success is counted sweetest by those who never succeed. On the other hand, we have another perception, Jaake Pehrna Fati Bivai, wo kya jaane peer par aayi. So if you really enjoy the game, you have to be a part of the game. So anyway, the topic is really very interesting. And our worthy speaker will throw light on the topic in detail. Before I invite him, let me introduce our worthy speaker, sir. Mr. Pawan Gupta ji is a success coach, an international transformational speaker, a certified master trainer, and a renowned educationist. He is the founder and CEO of Persona Engineering, which is a personality development institution for training and workshops. Mr. Pawan Gupta majored in commerce with distinction from the University of Delhi. Thereafter, he enrolled in the specialized course of psychology and distinguished himself by obtaining his master's degree. Mr. Gupta is an internationally renowned certified master success coach, having specialized in NLP curriculum from American Board of NLP, and has excelled himself as a researcher in human psychology and behavioral sciences. An extraordinary achievement of Mr. Gupta has been obtaining a silver medal by securing the second rank in the pursuit of his PG diploma in the highly specialized field of transport and economic management. Mr. Pawan Gupta ji possesses 23 years of experience in management consultancy and allied areas while practicing in sundry educational and academic institutions of worldwide repute. Mr. Gupta formerly acquitted himself with remarkable laurels while adorning senior managerial positions in highly reputed and sought-after educational and academic institutions. A laudable accomplishment of Mr. Pawan Gupta was being designated with the post of Assistant Project Officer, Organizing Committee Commonwealth Games, New Delhi 2010, wherein he was awarded several certificates by different countries recognizing his extraordinary talent and caliber. Mr. Gupta is a national UN volunteer, UN Global Compact, the International Digital Crusaders for the Cause of Education. He is a national advisor, SPAA India, Sports Academy Association of India, and the Life Associate, Institute of Rail Transport, New Delhi. Mr. Gupta is also the speaker at EDU Talk and EDU Feed, guest speaker at International Conference. Online teachings and examples of good practices, Macedonian Association, keynote speaker at Global Youth Summit 2020, GYP. He was also a keynote speaker at ULEAN, International Conference on the Role of Youth in 2021. He was the General Secretary, Satya Sai Educational Society, New Delhi, and Honorary Vice President, Maharaja Agrasen Vidyapeeth Dehradun, Regional Director for Asia, Youth Leaders, Ambassadors, Network ULEAN. Mr. Gupta is a senior management consultant for a large number of highly reputed schools. He has been bestowed with the Global Peace and Human Rights Award in 2021, GYP, the International Transformation Leader Award in 2021, Zona Awardee, IITA Best Success Coach in Education, Education Council of India. He is the General Secretary of All India Principals Association, International President, Inter Foundation, Founder, Persona Engineering, Secretary, Asia Committee, Global Youth Parliament. Persona Engineering is the brainchild of Mr. Pawan Gupta ji, success coach and motivational speaker and NLP expert. PEI
has successfully conducted motivational interactive sessions, workshops, and seminars wherein thousands of principals, teachers, students, and parents across India are trained and transformed. These innovative and sensitively created and implemented programs are the need of the hour and in the present scenario, a highly recommended methodology for imparting training. He has been honored with two international honorary doctorates for his tireless efforts to infuse leadership in youth as an influencer. Global Youth Parliament Summit 2021 was organized by the Global Youth Parliament at Kathmandu, Nepal from 18th to 21st of November in 2021. The Indian delegation comprised of 20 members and it was headed by Mr. Pawan Gupta ji. The retired Honorable Vice President also launched the International Educators, Trainers and Researchers Foundation, IETRF, co-founded by its International President, Mr. Pawan Gupta ji, and International General Secretary, Dr. Atul Hans. Mr. Pawan Gupta was bestowed upon the Global Youth Peace and Human Rights Award 2021 and International Transformational Speaker Award 2021 and for his extraordinary performance in transforming youth and his relentless work for peace and human rights across the nations. The Indian delegation also bagged an award for the biggest delegation. Indian delegation presented an eye-opening session on education and inclusion, in which many useful deliberations were made. Mr. Pawan Gupta ji, who opened the session as a keynote speaker and deliberated, there can be no education without inclusion. Inclusion of every caste and creed and education inherently imbibes within it inclusivity uh, of every citizen of the state. As a social responsible citizen, Mr. Gupta provides free training sessions as a CSR initiative and anyone can contact him for the same. So this is something about Mr. Pawan Gupta ji. And now I would like to invite him to share his scholarly vision with us and throw light on the topic and lead the success within. You know, we all have so many parts, but there's a need to reawaken that power or so such type of efforts should be made. So I welcome you, sir. Over to you, sir. Very good afternoon, all. Respected Vice Chancellor, Shobit University, Registrar Sir, Mr. Mahipal, Dean Dr. Gunjan Agarwal ma'am, and all the member of the staff of the university. First of all, I'll thank you all for inviting me here on a very, I'll not say hot topic, but very important topic without which we cannot see our life going ahead. That is how to unleash the success. Ma'am, could you allow me to share the screen so that? Yeah, sure. You can share your PPTs. Okay. Only before starting, I think ma'am has already told about me in length and breadth across, and we are in this education arena, and I'll tell you, there are very few private universities which are sincerely working on the social avenue, and I congratulate Shobit University and especially Dr. Gunjan Agarwal, who is basically not only trying her level best to put this university on the social platform relating to the social issues, but also putting all the efforts for transforming this university. और जैसे का कहा गया है कि सक्सेस को जब तक कोई डिफाइन नहीं करेगा और जैसे सक्सेस को जब तक बताया नहीं जाएगा
तब तक आदमी को फील नहीं होगा कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता। Everyone talks about success, but do we really know the meaning of success? Or are we able to conceptualize the format of success? I request everyone, देखो सी, जब तक हम लोग इंटरेक्टिव नहीं होंगे, और इस प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्शन क्या होता है, जब हम चैट बॉक्स पे कुछ लिखेंगे, तो इफ आई आस्क यू सम, पुट यू सम क्वेश्चन अक्रॉस, तो आप उसमें अपना थंब, आर्टिफिशियल थंब रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में यस नो लिख सकते हैं, या आप लोग किसी तरह से कोई क्वेश्चंस है तो उस तरह को पूछ सकते हैं, जिससे कि हम बेसिकली एक लाइव सेशन की तरह इसको देखें, कि अब लाइव सेशन जैसे हम 1-to-1 एक दूसरे के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आज की जो जनरेशन है, वी वांट टू बी सक्सेसफुल, सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हम ये जान नहीं पा रहे कि हमारे में वो गुण है कि नहीं, whether we possess that particular qualities, how to become successful or not. So first of all, I want all who are present here to just write in a chat box if possible कि आज तक हमने, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे प्रोफेसर्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, अपने क्या रिटर्न गोल्स लिखे हैं, कहीं अपने गोल्स को लिखा है कहीं कागज पे? जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आई जस्ट वांट टू सी, or just you can raise the thumbs if you are visual on the screen. Generally होता क्या है कि when we want to transform ourselves, in that particular time हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं, और जब चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो विजन है, हमारा जो मिशन है, हमारे जो गोल्स हैं, वो क्लियरली डिफाइन नहीं है। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, बट होता क्या है, सक्सेसफुल होना सब चाहते हैं, और उसके लिए सारे स्टेप्स भी लेना चाहते हैं, वो तैयारी भी पूरी कर लेते हैं, और वो कौन सोचता है कि वी आर प्रिपेयर? वो सोचता है वो आदमी जो कि ये सक्सेसफुल बनना चाहता है, कि भाई हम तो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, मगर हम एफर्ट्स भी कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा। अब why we are not able to convert our efforts into success, here is the problem. क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं गोल्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर है, प्रोफेसर है, तो बहुत सारे हजारों प्रिंसिपल से, स्कूल प्रिंसिपल से बात करी है मैंने, और बहुत सारे लोगों से मैंने ये पूछा है, रिसर्च करी है, तो उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे, हमने केस स्टडीज करी कि भाई आपको क्या लगता है कि आप क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए। अब गुंजन मैम, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होता है जब हम उनसे पूछते हैं क्यों सक्सेस नहीं बोल पाए, तो बड़ा अच्छा, एक सबसे बड़ा आसान होता है कि सर हमारे पास वो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज नहीं वेरी थी। ट्रू सर, वेरी ट्रू। You ask them one thing, why you're not successful, or why you think, what is just clinging you on, why do you just not able to get success or achieve success? वो कहते हैं भी हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास फाइनेंस नहीं था, हमारे पास सर्कमस्टेंसेस नहीं थी, हमारे पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, हमारे पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं था। So everyone has got all the excuses कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। Then I asked them one question: what you think the definition of success?
or how you see success. And I'll tell you, at this stage also, most of the people who have achieved very many high designations in life, अगर आज भी हम उनसे पूछते हैं माइंडसेट, मेरा इंडिया से बाहर भी बात जाता हूँ, वहां भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, इंडिया में बात पूछते हैं, तो उनको लगता है अच्छा मकान और अच्छी गाड़ी हो तो दैट डिफाइंस देयर सक्सेस। आज भी बच्चों से अगर पूछो क्या आप देखते हो, तो कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी हो मेरे पास, और मेरे पास अच्छा वेरी गुड हाउस आई वांट, और मैं घूमने फिरने जा सकूं। तो आई आस्क देम अगेन, कहां से डेफिनेशन आपके पास है? देन दे विल टेक 4-5 नेम। कि हमारे साथ एक प्रोफेसर गुंजम मैम है, उनके पास गाड़ी भी है, घर भी है, बहुत अच्छा खुश रहती हैं, तो मैं सोचता हूँ मैं भी अगर मेहनत करूँ वहां बन जाऊँ। या मेरे एक कजन है, उनके पास मर्सिडीज कार है, बहुत अच्छा घर है, तो मैं चाहता हूँ वैसे बन जाऊँ। या मेरे पड़ोस में साथ वाली आंटी रहती हैं, उनके पास अभी लिमोजिन ली है उन्होंने पीछे, तो मैं हमारे पूरी गली में सारे में चारों तरफ ये बात फैली हुई है कि भैया आंटी के पास तो लिमोजिन गाड़ी है, तो वो हमारे पास हो जाए। तो मैंने कहा दिस इज व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट, दिस इज। क्योंकि हमारा जो सोचने का नजरिया है, जो ऑरा है जिसमें हम सोच रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज क्लंज और क्रस्ड बाय सो मेनी नेगेटिव थॉट्स अराउंड कि हम लोग उससे उभर ही नहीं पा रहे, निकल ही नहीं पा रहे। I'll tell you very much burning issue. I keep on visiting schools और मैं 12th क्लास स्टूडेंट से बात हमेशा करता हूँ, और यहाँ भी मैं प्लेटफॉर्म पे पूछना चाहूंगा अगर कोई कहे, तो मैंने बच्चों से पूछता हूँ 12th क्लास के स्टूडेंट से खाली एक बात कि आप क्या करना चाहते हैं। आई टेल देम कि आप, गुंजन मैम, आई आस्क देम वन क्वेश्चन, मैं पूछता हूँ, बताता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ क्या करना चाहते हैं, और उनका आंसर होता है जिसमें एडमिशन मिलेगा सर वो करना। तो आर वी गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन? क्या हम एक लीडरशिप, जो इफेक्टिव लीडरशिप इंडिया को चाहिए अपनी जनरेशन में, वो क्या मिल रही है? नाउ इफ वी स्टडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कई बार हमें लगता है कि जो आर्ट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, एक्सपेंशन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, और बहुत बातें हो रही है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात हो रही है, तो यहाँ कुछ चेंज होता हुआ नजर आया है। बट वो चेंज तो होगा, फैसिलिटीज तो हो जाएंगी, बट आर वी इन अ पोजीशन टू चेंज आवर माइंडसेट कि वी हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, डिफरेंट करना है। और वो क्यों नहीं करना, वो क्यों नहीं कर पाते? जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि क्या हमारे पास कोई रिटर्न गोल्स हैं, मैंने जितनी भी कॉन्फ्रेंस ली है, वर्कशॉप्स ली है, जब पहले तो सब 30-40% लिख देते हैं कि हाँ हमारे पास है, बट लास्ट में जब Q&A सेक्शन होता है, जब मैं उनसे फीडबैक लेता हूँ, तो वो कहते हैं सर सारे बैठे थे इसलिए बोल दिया, एक्चुअली में हमारे पास गोल्स कुछ रहे ही नहीं प्रॉपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नीड ऑफ गोल सेटिंग अराइज। अब गोल सेटिंग कैसे अराइज हो सकती है? वी हैव टू फाइंड द पैशन फॉर थिंग्स विद इन आवरसेल्फ। अब जब तक किसी चीज के लिए आप पैशनेट नहीं हो, जब तक यू डोंट हैव अ पैशन अबाउट एनीथिंग, यू कैन नॉट एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर थिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ। अच्छा, मोर इंटरेस्टिंग एज वी आर इन शोबिज यूनिवर्सिटी टुडे, एंड बहुत नाम है यूनिवर्सिटी का, चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आप करा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। अभी रिसेंटली एक मैं स्कूल में गया, बहुत रिनाउंड स्कूल है महाराष्ट्र का, तो देयर आई वाज हैविंग टॉक विद सर्टेन ग्रुप ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स, सो आई टेल देम हु आर योर इन्फ्लुएंसर्स। तो उन्होंने पहले तो बोल दिया ये भाई वो क्रिकेटर्स हो गए या एक्टर्स हो गए। फिर मैंने कहा नहीं, आपके पास नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर कौन है जो आप अपने देखते हो?
उन्होंने बोला कि हमारे पास इन्फ्लुएंसर जो हमारे बिल्कुल आसपास है वो हमारा अल्टीमेटली एक रियल फ्रेंड है जो हमारे सामने खड़ा है, इज वेरी गुड इन स्टडीज एंड इज टॉपर ऑफ द क्लास. So I said, why you think that you can't be in his place? तो कहते हैं भाई देखो ऐसा कि सर उसका दिमाग ज्यादा है, फिर उसके बाद फैसिलिटी ज्यादा है, वो अच्छा पढ़ता है तो इसलिए टीचर उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं. तो आई वॉज आस्किंग देम हु इन्फ्लुएंसेस यू, और उनका आंसर क्या था कि भाई दोस्त है, वो पढ़ाई में अच्छा है, उसके पास सारा ध्यान देते हैं. तो मैंने कहा आप कहाँ खड़े हो आज? फिर फंस गए. देन आई आस्क्ड वन क्वेश्चन. There was around 200 students in that hall. I asked them one question. Can you all give me in writing where you all will be after 5 years? 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, क्या आप मेरे को बता सकते हैं? तो मैंने बोला बीइंग एनएलपी एक्सपर्ट आप मेरे को एक किट बना के देंगे, अगर आपने झूठ लोग बोला होगा तो पकड़ लूंगा मैं. तो आपको सच सच बोलना है, अगर नहीं होगा तो मैं आपको रास्ता बता दूंगा. बिकॉज इफ आई एम discussing you with the problem, I'll tell you the solution also. But before that, you have to tell me truth, where you all will be after 5 years. उन्होंने बोला सर हम अंतर्यामी थोड़ना है, एस्ट्रोलॉजर थोड़ना है, हम कहाँ 5 साल बाद होंगे. मैंने कहा जब आपको यही नहीं पता तो इसका मतलब आपको गोल्स के बारे में नहीं पता, आप क्या बनना चाहते हैं यही नहीं पता. उसमें out of 200 only 5 to 10 students were there जो confidently they came forward और उन्होंने हमने बताया कि सर मैं डॉक्टर बनाऊंगा या आप मेरे को देखोगे. मैंने कहा अच्छा डॉक्टर बने होंगे फिर क्या देखोगे? तो उन्होंने कहा भाई डॉक्टर बनाओ. तो लास्ट में जब एक हमारी गुड़िया आई तो उसने बहुत अच्छा आंसर दिया कि सर मैं मेरे को लगता है कि मैं एक इंजीनियर बनूंगी, मैं अपनी मम्मी को उससे पहले एक घर दिला दूंगी और मेरे पास पैसे का प्रोविजन होगा. मैं कोशिश करती हूँ इंडिया में चारों धाम मम्मी पापा को घुमा दूंगी. So question here lies with the young generations कि कहीं ना कहीं हम सक्सेस को पाना तो बिल्कुल चाहते हैं, मगर क्या सक्सेस होती है, कैसे पाई जाती है, क्या एफर्ट्स करने जाते हैं, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन मोड में रहते हैं. अब कंफ्यूजन मोड में क्यों रहते हैं कि सबसे पहले हमारे घरों में और एक हमारे समाज में एक बात कहती है लोग कि हम लोग जजमेंटल बहुत है, तुम तो कुछ बन नहीं पाओगे एक बच्चे को, और दूसरे वाले को तुम तो बिल्कुल ही टॉप कर जाओगे. सो कहीं ना कहीं व्हाट बेसिकली हैपेंस, हम उस एक एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं कि अदर और यू कैन से आउटसाइड फोर्सेस, आउटसाइड environment is defining our success. You can do this, you can never do it. आप तो कर ही नहीं सकते. और सबसे एक आसान तरीका कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है, एक माइंडसेट लेके बैठ गए यार हमारे पास ये चीज होती तो मैं ऐसे कर जाता. अब वो चीज नहीं अवेलेबल है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, तो दे सिट, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. और ग्रेजुएशन कर लेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी का टैग आ जाएगा, विल गेट जॉब, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, एक कार आ जाएगी, एक घर हो जाएगा, ठीक है. अब ऐसा माइंडसेट हमारा हो गया और हम इसमें निकल ही नहीं पा रहे. क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि वी आर गिविंग नेगेटिव एफर्मेशंस टू आवरसेल्फ. तो मैं ये कर ही नहीं सकता. चलो ये बात भी हमने समझ ली कि एनवायरनमेंट ऐसा है तो आप नहीं कर सकते. तो इसको करेक्ट करा कैसे करा जाए? तो being a NLP expert, master expert, I keep on asking individual people whenever I'm in workshop,
कि हाउ यू थिंक, डिफाइन योरसेल्फ। तो बेचारे 3-4 लाइन तो बड़ी अच्छी अच्छी मैम बोलते हैं कि सर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ या इंजीनियर कर रहा हूँ और मैं अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा। देन आई आस्क्ड हिम, अच्छा बन जाओगे कि बहुत अच्छा बन जाओगे? सर हाँ शायद बहुत अच्छा। आई सेड अच्छा बन जाओगे, बहुत अच्छा कि एक्सीलेंट? तो कहता सर एक्सीलेंट तो नहीं बन सकता। सो हियर इज द क्वेश्चन। आई सेड व्हाई? तो कहते सर जो एक्सीलेंट है ना वो हमारी क्लास में रमेश है, और उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बड़े टीचर्स भी इंप्रेस हैं, उसकी फाइल्स भी अच्छी होती हैं, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है। मैंने कहा आपकी नहीं होती? कहते होती है। मैंने कहा फिर आप एक्सीलेंट क्यों नहीं बन सकते? सर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अंदर से, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अंदर से। इसका मतलब ये है कि वी आर सेल्फ डोंट बिलीव इन अस। हमने अपने आप ही अपने आप से सेल्फ क्रिटिसिज्म करके, अपने आप में कमियां ढूंढ के अपने आप को ही टैग दे दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, कि मैं वो कर नहीं सकता, मैं वो अचीव नहीं कर सकता। फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात तो छोड़ दे, ये सेल्फ बिलीफ पे जब क्वेश्चन आ जाता है कि आई एम नॉट एबल टू अचीव दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ सक्सेस, वहीं से हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हो जाती है वो शुरू हो जाती है कि जब आप स्टेज पे जाके सोचते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अपने आप ही आप गिरना शुरू करते हो। सो अब आते हैं कि किस तरह से हमको बाहर निकलना है, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज मैंने आज देम वन मोर थिंग, कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए अगर आपको सपोज कोई गाइडेंस लेनी है, तो किससे लोगे? तो थोड़ा और उनसे पूछो क्या करेंगे, तो डेफिनेटली सबके दिमाग में होता है हाँ यार फ्रेंड्स, सर फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, वो मेरे को बताता है, उससे गाइडेंस लेता हूँ, और उसके साथ ही जैसा वो करता है मेरे लिए बहुत अच्छा फ्रेंड। और मैं पूछता हूँ कि अपने अच्छे फ्रेंड के कितने मार्क्स आते हैं, वो कहते हैं सर 80s आते हैं। मैंने कहा आपके कितने आते हैं? मेरे 60 आते हैं। मैंने कहा आपके 80 क्यों नहीं आते? नहीं सर मैं शायद ना पढ़ नहीं पाता हूँ उसके जितना। देन आई आस्क देम अगेन व्हाई? सर उसको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है, और कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जिससे कि मेरे 80 मार्क्स आए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइप ऑफ environment we are living in, and what type of perception we are making in our head? सो जब तक ये चीजें आपके क्लियर नहीं हो, आपका विजन क्लियर नहीं है, मिशन क्लियर नहीं है, आप सक्सेस अचीव नहीं कर। तो तभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले तो पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके में देनी है लाइफ में कि यस मैं कर सकता हूँ। वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू ऑल, जिसके भी दिमाग में नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, जिसके भी दिमाग में लगता है मेरे को ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो आई आस्क देम टू राइट 10 positive points about a person in their close vicinity जो आपको अच्छा नहीं लगता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा आदमी, सपोज आई एम नॉट वेरी गुड विद गुंजन मैम, सो आई विल राइट 10 बेस्ट थिंग अबाउट हर। तब होता तो है नहीं दिमाग में, वो तो आता है यार वो अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा है वैसा है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि लिखो पॉजिटिव, तो कंफ्यूजन में होते हैं, कुछ तो दिखा होगा पॉजिटिव।
and suddenly they start writing this. Then I ask them to compare these negative positive points with the negative points जो आप सोच रहे थे उनके बारे में. Then they say yes, something is there. Then I again ask them, गुंजन मैम, उनसे हम पूछते हैं कि अब आप अपने लिए 10 चीजें वो लिखो जिनको आप पहले सोच रहे थे मैं नहीं कर पाता, अब कर पाऊंगा. Then they'll start writing this कि हाँ ऐसा सर पूरा नहीं कर पाऊंगा, सच्ची में पूरा नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, नहीं नहीं कोशिश करिएगा, तो कर सकते हो, हाँ करेंगे. Unless and until you believe in yourself, no one in the world will believe in you. One. Second, कि आपको अपने एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, पॉजिटिव वाइब्स ढूंढनी है. कि क्या क्या मेरे साथ दिन में अच्छा हो रहा है. अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, कहते सर पहली बार आप ऐसे मेरे को बोल रहे हो, बच्चे बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि आप पॉजिटिविटी ढूंढो, जबकि हमारे पास तो हमेशा यही रहता है, आज खाना टाइम पे नहीं मिला, आज लेट हो गए, आज प्रोफेसर की क्लास अटेंड नहीं कर पाए, आज उसने डांट दिया, आज फाइल वर्क पूरी नहीं थी, आज प्रोजेक्ट भी नहीं दे पाए, आज प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल बेकार ही गई, आज तो बस भी छूट गई, आज गर्मी बहुत थी, आज घर पे गए तो खाना भी नहीं मिला ढंग से. So we all have got these type of questions in our head daily. और जब वो उनसे मैं पूछता हूँ, मैंने कहा यार फिर जब आप इतने सारे कंफ्यूजन मोड में रहते हो, और जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें कि ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, मैंने खुद नहीं बताई, बच्चों ने मेरे को बताया. तो मैंने कहा ऐसे एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल हो जाओगे? कहते सर तभी तो नहीं हो पा रहे. मैंने कहा ये बनाया किसने, ये बनाया किसने कि लेट हो गए, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आपका टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, समझ में नहीं आता. हु क्रिएटेड दिस एनवायरनमेंट? अब से पहले तो वो ये बोलते थे बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसी फैसिलिटी दी. अब उनको पता लगा कि दिस वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ देयर ओन बिहेवियर, देयर ओन बिलीफ सिस्टम. एंड इन एनएलपी वी कॉल इट एज लिमिटेड बिलीफ. मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होगा. मैं तो कभी लॉटरी में लगाऊंगा ना कुछ, वो अब लूडो भी खेलता हूं तो मेरे पास 6 नहीं आता. अरे भैया ऐसा करोगे तो कैसे सक्सेसफुल होगे? So how to get rid of all this things? अब हमारा टॉपिक आ गया अनलीश कैसे करना. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आई जस्ट व्हाटएवर कॉन्वर्सेशन वी हैड टिल नाउ, उसमें ये बता दिया कि सारी जो ये हमारे पास नेगेटिव थॉट्स आ रही है, नेगेटिव अफर्मेशन आ रही है, नेगेटिव इन्वायरमेंट आ रहा है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा, ये हमारी खुद की सोच है जिसने बनाया गया. सो अगर ये नेगेटिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, तो हमारा सक्सेसफुल जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा. 1. सेकंड, 2 things are important in life. One is time management, second is stress management. I asked one principal कि मैम आप can you tell me about the daily schedule? She said I wake up at 6:30. मैं फटाफट उसके बाद मैं वो अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद मेरे को 8 o'clock स्कूल पहुंचना होता है. मैं 7:30 निकलने की कोशिश करती हूँ, मगर डेली 7:40 हो जाते हैं, जिससे मैं स्कूल पहुंचने के लिए लेट हो जाती हूँ. और वहां मैं हबड़ा तबड़ी में गेट पे जाती हूँ, मेरे को लगता है मेरे से पहले टीचर्स ही ना पहुंच गए. तो उसके बाद सर मेरा सारा 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 शेड्यूल 5-5-10 मिनट के बीच में सारा ही बिगड़ गया.
This I'm telling about a hardworking, reputed principal. And she acknowledged that this is my fault. This is the obstacles I face. Then I asked her one question: why it happened? ये डेली होता है, हाँ जी, हफ्ते में 5 दिन होता है साथ में. Why? सर सुबह 10 मिनट लेट हो. अरे at what time you wake up? 6:30. क्या रात को जल्दी सो के आप 6:15 बजे उठ सकते हैं? 10 दिन करके देखते. She did it. She tried. She called me around 20 days. After that, this are improvement. So it's all there in our mindset. अगर आज ही हम ये सोच लें कि 5 साल बाद कहाँ होंगे, हमने मर्सिडीज में बैठना है कि खाली स्कूटर पे काम चल जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में क्लियर हो. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट हमारे पास आता है, जो हमारे बैरियर्स हैं, जो हमें सक्सेसफुल नहीं होने देते. मैं सारी जो बातें बता रहा हूँ आपको गूगल पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो हमने रिसर्च करी है, केस स्टडीज करी है, चाहे एनएलपी करे हैं, चाहे मास्टर ट्रेनिंग्स में करें, वो केस स्टडीज से करें, लाइव केस स्टडीज से, स्टूडेंट्स के साथ जो होता है और कैसे उससे निकला जाता है और कैसे सक्सेस रेट को बढ़ाया जा सकता है, हर आदमी कर सकता है. मैं कहता हूँ आज सारे कहते हैं कि हमने रिटर्न गोल्स कर रखे हैं, सारे कहते हैं हम शेड्यूल के हिसाब से करते हैं. मैं सबको एक 10 डेज का होमवर्क देता हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो. अब 10 डेज में क्या क्या काम करना है शेड्यूलिंग बना लो. सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले 10 दिन का शेड्यूल लिख के रख लो और करके देखो, मगर 100% फॉलो करना है. एंड आई टेल यू, इफ इवन इफ यू फॉलो 50% ऑफ इट, टोटल जो बनाया आपने, यू विल फील द डिफरेंस. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ में हमारी हिंड्रेंस है, वो ये कि वी हैव स्टार्टेड लिविंग इन अ कंफर्ट जोन. हमें लगता है कि चलो ठीक है, आराम से मिल रहा है ना, 70% मिल रहा है, ठीक है. थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है. थोड़ी सी डांट पड़ रही है, ठीक है. नौकरी थोड़ी छोटी मिल गई, ठीक है. सीए नहीं बन पाए, सीएस बन पाए, ठीक है. कहीं ना कहीं हमने अपनी सक्सेस रेट को खुद ही रोका हुआ है, खुद ही अपने हमने टाई करके गांठ अपनी मार रखी है. कहीं ना कहीं हमने उस चीज को पकड़ के रखा है कि भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस ओनली वी आर नॉट एबल टू unleash the success. And when I talk about unleashing the success, I declare that everyone has got possibility, everyone has got the have got the art of converting this negativity into positivity, and everyone has got art of converting the possibilities. तीन चीजें होती है, लर्न, अनलर्न और रीलर्न. तो कभी भी ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग. कि आपने कुछ सीखा है तो आपको कहीं भी लगे वो गलत है तो उसको अनलर्न कर दो और बेटर बेटर वाली चीज को रीलर्न कर लो. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस. इट्स ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स. इट्स ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स. यानी कि यार नहीं, गलत हो गया तो गलत ही हो गया, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता. नो, यू हैव टू लीव दिस हैबिट. Secondly, I just want to discuss us
लिटिल बिट अबाउट अ मूवी, जो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हमें लगता है कि उनकी वजह से हम बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, तो उनसे कैसे हमें चीजें लेनी चाहिए। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ MS धोनी मूवी का। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, सारा सबने ज्यादातर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लो। एक शॉट है जो MS धोनी जी खेलते थे या अभी भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गए। उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट। कई बार बोलते हैं कि अगर छोटा बच्चा भी आपको अच्छी बात कहे तो ईगो छोड़ के उससे सीखनी चाहिए, या आपका दोस्त जिसको आप सोचते हो कि ये नहीं कर सकता और वो आपको समझाए और आपको लगे अच्छा है तो समझ लेना चाहिए। अगर आप उस मूवी के सीन में जाओगे जब MS धोनी वो हेलीकॉप्टर शॉट सीखता है, तो आपको लाइफ की एक रियलिटी पता लग जाएगी। वो शॉट था जो MS धोनी ने सीखा, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड फेमस हुए, इंडिया के कैप्टन हुए, चारों तरफ उन्होंने इंडिया का नाम करा, अपना नाम करा। वो शॉट उनका अपना नहीं था। इफ यू रिमेम्बर, आप गो बैक मेमोरी में जाएंगे, थ्रो बैक करेंगे अपने आप को, कि वो आप देखेंगे कि उसका फ्रेंड था, उसके साथ मैच चल रहा था, लास्ट बॉल थी और धोनी ने समझा कि वो आउट हो जाएगा, मगर उसने आउट नहीं हुआ, वो सिक्स मार दिया। जबकि धोनी बहुत अच्छा खेलते, तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसी यदि उन्होंने सिक्स मार दिया तो क्या चीज है। सो वेन एवर यू सी द अपॉर्चुनिटी ट्राई टू लर्न। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि भैया ये कैसे मार दिया था कल रात को आपने शॉट। वो कहता है मैं आपको सिखा दूंगा। तो कहता है सिखा दोगे, सिखाओ। उसने कहा मेरे को एक सिंगाड़ा खिलाओ, मतलब एक समोसा। तो धोनी जी ने एक समोसा खिलाया, उन्होंने उनको हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया। जिन्होंने सिखाया था फ्रेंड ने, वो मेरे ख्याल से रणजी भी नहीं खेले, और जिन्होंने सीखा था वो MS धोनी बन गए। So you have to work hard to achieve success. You have to find the ways how to achieve success. You have to find your own inner qualities. You have to retrospect your mistakes which you did it in past. And if अब कई बार मेरे से फिर कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप मेरे को सक्सेस फॉर्मूला बताओ। मैं उनसे बोलता हूँ मेरी 5 दिन की आप क्लास है, वो अटेंड करना, मेरा वर्कशॉप्स है, और वो आपको लगे कि आपको हम स्टडी करेंगे पूरा NLP के हिसाब से, और उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से हो सकता है। तो फिर उन्होंने पूछते हैं कि सर मेरे को कोई ऐसा छटपट वाला हो, तो ऐसा मंत्र बताओ। तो हमने कहा चलो वो भी ले लो। तो कहते बताओ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप मेरे को बताओ कि आप क्या चीज नहीं कर सकते। Then they say this. Then I again put a question on that. अगर आप बोलो कि लाइफ में आपको बोलो कि आपको कोई कहे, यमराज खड़ा हो जाए और 10 दिन बाद कहे कि आप अगर यही चीज नहीं करोगे तो आपको मैं ले जाऊंगा, तब आप कर लोगे? हाँ हाँ सर पॉसिबिलिटी है, मैं कर लेंगे। मैंने कहा क्या करेंगे सर? हम रिस्क लेंगे, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे, हम मेहनत करेंगे। सो आई टेल देम दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला। अब बहुत बड़ी एक कई बार कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है बात कि हाउ पीपल से कि हार्ड वर्क नहीं करते, हम इतना हार्ड वर्क कर नहीं पाए तो सक्सेसफुल हम नहीं बन पाए, बट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू वर्क दैट हार्ड विच वाज रिक्वायर्ड। तो आई सेड इसका मतलब हर रिक्शे वाले को फिर तो बिल गेट्स बनना चाहिए, उनसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, खाली हार्ड वर्क की बात। तो क्या हार्ड वर्क से ही सारी सक्सेस डिमांड हो रही है? फिर जब ऐसे पूछते हैं तो फिर वो अगेन दे गो इन यू नो दैट स्टेज विजन। हाँ सर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। आई आस्क देम क्या कुछ होना चाहिए?
then they are in confusion. So unless and until we have got a systematic steps towards achieving a particular goal, even our hard work will go in vain. So for becoming successful, you don't only have to be a hardworking professional, but you have to be a person who has got proper scheduling about the things, proper framework, proper blueprint of his desires, and most importantly, it should be the achievable desires. So if you convert your unachievable desire into achievable desire, most of the things will be easier in life to achieve. And friends, success is not hiding anywhere. It is within yourself. आपको अपने अंदर को रेट्रोस्पेक्ट करना है, अंदर को खंगालना है. And everything is governed by our mind. We have to just do an activity of self-talk. वो जमाने चले गए, लोग कहते थे हमारे को कोई कंधा नहीं मिल रहा जिसके ऊपर सर रख के हम अपनी बात कर सके. वो बात भी पीछे रह जाएगी if you have got art of doing a self talk. तो आप अकेले से अकेली जगह पे, जहां कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जहां कोई एनवायरनमेंट आपके फेवरेबल नहीं है, इफ यू नो द आर्ट ऑफ डूइंग सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, खुद से अपनी कमियां ढूंढना, खुद से अपने स्टेप्स को रीचेक करना. एज आई टोल्ड यू, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. वो तभी हो सकता है कि जब आपके ये माइंडसेट दिमाग में आ जाए कि यस, टुडे आई बिलीव कि वट एवर थिंग्स आई वाज डूइंग टिल डेट वो गलत थी. सेल्फ क्वेश्चनिंग करो जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग एंड हाउ टू रेक्टिफाई इट. सेल्फ क्वेश्चनिंग का मतलब सेल्फ असैसिनेशन नहीं होता. यू हैव टू नो दिस डिफरेंस. एंड फ्रेंड्स, as you know, I am running a personality development organization by name Persona Engineering, and there we also do some research work. So if you have got any particular questions related to your own self, related to what are the different things which can change your life, so you can take my number, that is 9891395159. It's just a WhatsApp number, so you can just write your grievances or whatever obstacles you face in life. So we do some CSR initiative also, where we give them free advice to genuine needy people. और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे कि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे लाइफ में कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं चेंजेस ला सकता हूँ, और जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे तो आपको समाज से, एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से टैग लेने बंद कर देंगे. आपसे आपकी सक्सेस उसी दिन से बहुत ट्रिगर हो जाएगी. आपको लोग फॉलो करें, इसके लिए आपको लोगों के घर जाने की जरूरत नहीं है.
if you can bring changes in yourself, if you are in a position to transform yourself, if you are in a position to find out positivity around, if you are in a position to write good things about a bad person, I'll tell you my friends, उस दिन आप सारी जो ये ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी सक्सेस को रोकने वाली खत्म हो जाएंगी, and you will be a truly successful person in future. So I have got very many things around, जो हम डिस्कस करूं तो शायद 4-5 घंटे में भी खत्म ना हो, but as we have got time constraint, so if you have got any question in particular, or if you want to discuss something, please, most welcome. Gunjan ma'am, over to you. Yeah, thank you so much. Really, I think a wonderful session. You are explaining the concept of success, how to get success. All in a very practical manner, in a very, very acute manner, very crispy manner, I can say. So there are some questions in chat box. If you allow, then I would like to read these questions. One of the first question has been asked by our director, Dr. Professor Gupta ji, and he is asking, though you have answered, you replied, the question is how to create a growth mindset that attracts success. Ma'am, see, growth mindset comes from within. The day we start thinking positively about ourselves, the day we start exploring positivity around, our growth will start happening. We have got scared and discuss one thing with you. अब होता क्या है, मैं वैसे एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं, कुछ मैंने रिसर्च करे हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर के लिए स्पेशली. अब क्या होता है, दो जनों में झगड़ा होता है, दे आर टू फ्रेंड्स, दे हैव गॉट फाइट. अब ग्रोथ माइंडसेट कैसे रुकता है और कैसे खोला जा सकता है मैं बताता हूँ. दो अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, दोनों साथ काम कर रहे हैं, यू कैन से टू प्रोफेसर वर्किंग टुगेदर. एक दिन अचानक किसी बात पे मनमुटाव हो जाता है, तो नाउ दे डोंट वांट टू टॉक टू ईच अदर. तो उसमें क्या हो गया, वो एक लूप बन गया. एक लूप होता है ना, प्लास्टिक का लूप होता है, कमर में डाल के घूमते हैं, बट अब लूप में क्या होता है, तो वो प्लास्टिक का होता है और वो ब्लॉक्स होते हैं, आप दोबारा उसको अगर तोड़ के लगा दोगे तो लग सकता है. तो अभी तक क्या था, लूप स्टेज में था. दो जनों में झगड़ा हुआ, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बीच में मनमुटाव कर दिया. बट अगर दोनों में से कोई एक दूसरे के सामने आता, बात करता, तो बात जुड़ सकती थी. इसका मतलब वो जो नेगेटिव लूप था वो टूट सकता था. चलो जी, ये नहीं टूटा. अब अगले दिन फिर दोनों मिले, एक उधर की तरफ जा रहा है, एक उधर की तरफ जा रहा है, दोनों में ग्रीटिंग एक्सचेंज नहीं हुई. तीसरा कोई आ गया प्रोफेसर, उसने पूछा अभी क्या हो रहा है. नहीं यार, वो सर बेकार बातें करते. नहीं आप बेकार बातें, कुछ नहीं हो सकता. तो द थर्ड पर्सन बीइंग, इंस्टेड ऑफ दोस्ती कराते, उन्होंने भी कहा हाँ यार मेरे को भी कमियां लगती है. तो नाउ एक लूप था जो टूट सकता था, दैट बिकम अ चेन. एक कड़ी, दूसरी कड़ी, थर्ड कड़ी, चेन बन गई. बट स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ ब्रेकिंग दिस चेन, कि आप फिर तीनों में से कोई बात करता तो शायद बात बन जाती और नॉर्मलाइज हो. I'm just giving you example how this negative thought process overtakes us and that stops our growth. So पहले we discuss about a loop between two person. Because of that loop, a chain has been created. But in chain also there is a break. कि झटका मारोगे तो चेन भी टूट जाती है. Is it or not? तो हम वो चेन जो ऐसे ऐसे करके बनी लूप से, वो फिर टूट सकती थी, बट no one tried. उसको पाइल अप होने लिया थॉट्स कि हमारे साथ तो ये नहीं हो पाएगा, वो ऐसा गलत है, ऐसा गलत है. अब ये हफ्ते तक चलता रहा. उसके बाद व्हाट हैपेंस, देयर बिकेम टू टीम्स. पहले वाले प्रोफेसर की दो दूसरे प्रोफेसर की.
जो उसके फ्रेंड थे उस साइड हो गए, उसके फ्रेंड से उस साइड, वो चारों तरफ एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गया। अब नाउ जो लूप था टूट सकता था मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन खत्म करके, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करके, सेल्फ टॉक करके, वो खत्म हो गया। अब वो चेन बनी थी वो भी टूट सकती थी इफ एवरीवन वुड हैव कम टुगेदर, बट अब तो एनवायरनमेंट ही बिगड़ गया बिकॉज वो अब ग्रुप्स बन गए, दैट हैज बिकम अ नॉट नाउ। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अननॉट द थिंग्स। तो कहते हैं ना, अब गांठ बन जाती है तो टूटता है तो धागा ही टूटता है, गांठ नहीं खुलती। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव चीजें हैं, आई जस्ट गेव यू द यू नो sarcastically example of professors. It can happen to anyone, anywhere. Friends में हो सकता है, घर में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, आसपास की चीजों को लेके हो सकता है। ये पर्सनल माइंडसेट है। जो ए और बी मैंने प्रोफेसर्स की बात करी, तो वो हम और आप है। हम उससे निकलना नहीं चाहते। हम बातों को क्यों ग्रोथ रुकती है? बिकॉज वी आर converting the loops into chain. We are converting the chains into knots. और वो तोड़नी बहुत जरूरी है, वो बहुत धीरे धीरे से खोलनी जरूरी है। तो वी हैव टू हैव अ प्रॉपर सेल्फ टॉक, वी हैव टू हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन, we have to understand other people's perspectives also. The day we understand our circumstances, and then no one can stop us from being a successful person in life. Very true, sir. And he further writes one more sentence that is a theoretical sentence. So, do you agree with this point? And I would like to read exactly. the sentence. Yes, I read. It is healthy thought, healthy mind, vice versa, sir. 110%. ये एक ब्रह्मास्त्र है, ये एक फॉर्मूला है, जो फॉलो कर लेगा उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। जब वो कहते हैं ना, जब आप पेड़ बो बबूल का तो आम कहाँ से आए। So we are talking about mangoes, and healthy thought is just like mangoes, not baboon. Actually, there are many questions on WhatsApp and other sources. So, you know, there are two ways to get success in life: ethical and unethical. Nowadays, people, they are much more attracted towards unethical ways. So, what do you think about it? You know, when we talk about material success, so all the people want to take shortcut. So, what is your stand, your viewpoint? I told you कि I asked from the students. मैं कल सबने बोला घर लेना है, गाड़ी लेना है। एक बिटिया ने बोला लास्ट में कि मैंने 4 धाम मम्मा को ले जाना है। आप समझ रहे हैं? So ethical, unethical कहाँ से आएगी? अंदर से आएगी। The day we'll understand the positivities around, the day we are in a position to eradicate all the negative thoughts from our head, तो हम शॉर्टकट भूल जाएंगे। एक वर्ड पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान से ही आता है और हम ही नहीं सीखते। दैट इज कॉल्ड संस्कार। Very true. And I have attended one program of your universities. I think one of the promoter of your universities, he was delivering a lecture in one Indian International Center. And there he was talking about this topic only, sanskars. So I was really happy to hear that. Still we have got people, those who are educationists, those who are running such big institutions, but they believe in sanskars. Sanskars are the value which are bestowed upon us, not only by our parents, but our educational institutions, our ancestors and all. तो जब उनसे जाते हैं तो अनएथिकल चीजों से हम अपने आप ही दूर रह जाते हैं। Very true, sir. Very true. Sir, if you allow, there's only one more question. Can I ask? Suppose I live in a very small house. मैं छोटे से घर में मैं रहती हूँ, and I live in a not in a metropolitan city. छोटे से शहर में रहती हूँ, छोटे से घर में रहती हूँ, छोटी सी नौकरी करती हूँ. Though I have potential, I can do many more things. But my friends,
my relatives, my family members, they always instigate, oh, what you have achieved. You haven't achieved anything. Look at other people. They have achieved many more things. So such type of external pressure, I'm very much satisfied with my life. I'm very much happy. My house is not big. My house is old fashioned. If I have very less resources, even then, if I feel contentment in my life, but external pressures, what about those external pressures? They always talk about, materialistic things. How to deal with वेरी that? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग Very क्वेश्चन। interesting. Most अभी of the अभी schools अभी face. आपने मेरे को एक पूछा कि मैं छोटे से घर रहता हूँ, घर में रहती, छोटा सा घर है, छोटी सी जगह है, छोटी सी शहर है। Who is defining Uh, this छोटा? Who is defining this छोटा? Myself. And who is getting influence from other people? कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं। hmm. And why we are So saying that? myself, my mindset is responsible हाँ, here. ऐसे Hmm. आप उनसे एक क्वेश्चन पूछो, आपके पास बहुत बड़ा घर है, क्या आप डेली मम्मी के साथ बैठ के खाना खाते हो? वो कहते Hmm. नहीं, मतलब लेट आता हूँ, नहीं खा पाते। अरे यार, आपने तो क्या मिस कर दिया। वो तब आप खा सकते थे अगर आप छोटा घर होता, एक ही कमरे में थे, दोनों Hmm. साथ बैठते थे, पॉसिबिलिटी नहीं थे दूसरे रूम्स में बैठने की। अच्छा, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन, Hmm. क्या आप बात करते हो पेरेंट्स से? नहीं यार, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे Hmm. होता हूँ, वो सेकंड फ्लोर पे होती है, नीचे होती है, बात करें। सो the thing you asked in the previous question about ethical and unethical things, or we discuss about sanskaras, ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं जब हम अलाउ कर देते हैं, when you allow other people to take driver's seat। अब होता क्या है, बेसिकली आई जस्ट जस्ट थोड़ा 2 मिनट लेके मैं आपको इंटरेस्टिंग समझाता हूँ। अब पहले क्या होता था, हमसे कोई पूछता था कि यार तुम तो बड़े डिप्रेस लग रहे हो, और नहीं भी होते थे ना, तो आदमी सोचता था हाँ यार, हो सकता है मेरा छोटे घर में होगा, या छोटी गाड़ी में रहा हो, या ऐसे काम की वजह से ऐसे बोल रहा होगा। तो आदमी नहीं भी होता है तो बोलता है हाँ यार शायद, अच्छा नहीं भी होता है तो भी सोचता है हाँ कल शायद ऐसी बात है जो मैं लग रहा हूँ। तो बेसिकली यू आर गिविंग देम योर ड्राइवर सीट। उसने वैसे ही बोल दिया कि डिफरेंस लग रहे हो, आपने बोला हाँ मैं लग भी रहा हूँ, और आप ढूंढ रहे हो अपने अंदर ही कि भैया मेरे को प्रूव करना है इसकी बात ठीक कि हाँ मैं लग रहा हूँ। Hmm. अब जब तक हमने एनएलपी नहीं करी थी, हमें समझ में आ गया। जब हमने एनएलपी करी, आई हैव डन एक्सपर्टीज कोर्स इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने कहा जैसा आप दोगे वैसा ही मिलेगा। नेगेटिव सोचोगे अपने लिए, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद जब मेरे को उन्होंने कोर्स कर दिया, उसके बाद मेरे को बहुत सारे दोस्त थे जो कई बार बोलते थे यार आपको लगता है डिस्टर्ब कर दूं? मगर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ा खुश हूँ, बट तेरे चेहरे पे डिस्टर्बेंस झलक रही है। सो आई यूज्ड टू पुट द सेम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ हिम। मेरे को लग रहा है तो आप डिस्टर्ब करा, क्यों नहीं? मैं तो बोले पूछूं, मैंने कहा आप डिस्टर्ब नहीं हो तो आप डिस्टर्बिंग क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? नेगेटिविटी तो आप में है। तो दे स्टॉप डूइंग दैट। So don't allow anyone to take control of your driving seat in life। आप छोटे घर में हो, अपनी विशेष से रह रहे हो, घर में साथ रह रहे हो, खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ, दो जने आपके साथ हैं, आप बात करने के लिए उनसे कर सकते हो। सक्सेस यही है। सक्सेस वो नहीं है बहुत बड़ी गाड़ी में है, 500 करोड़ रुपए है, घर में कोई है नहीं आपके साथ बात करने वाला, और 4 दोस्त नहीं है। You have to define your Very true. own। This is a bit of reality, bit of scenario nowadays. Yeah, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बड़ी बड़ी चीजें हमें खुशी नहीं दे सकती, लेकिन give us pleasure, सुख, but internal happiness is something else. So really बहुत अच्छे से गुप्ता जी भी लिख रहे हैं। Thank पवन जी for your nice coverage। बहुत 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 बढ़िया सेशन, fruitful, enlightening session। So I'm very thankful to you। बहुत चीजें हैं बोलने के लिए, there's a time limit, and if possible I would like to invite you offline so that my students Definitely, and definitely, all the students of my university and teachers, they would interact. So that would be definitely, really ma'am, definitely। again a wonderful session। So first of all, I would like to express my sincere dedication to God and devotion to God, who has given us everything to flourish and get success in our endeavor. And I thank you, Pawan Gupta ji, for your this brainstorming. I would say this is brainstorming. Actually, we are feel compelled to think again, and for this wonderful thought provoking and this fruitful session by raising
very common, practical issues in the way to success. And you have mentioned so many things. And I'm thankful to our Honorable Vice Chancellor, Sir Professor Ajit Singh Sir, and respected Registrar Sir, for providing such a healthy atmosphere and supporting all of us. And I'm thankful to all the participants and our excellent technical team. I thank you, Nitin Sir, for your cooperation. And with your permission, I would like to say one term. Actually, if I think negative, I will be negative. But I think, success and failure are two sides of the coin of life. And failure makes an exact assessment of our potential and makes us more focused, while success enhances our confidence and encourages us to take more and more steps further in the right direction. So when we believe in the concept of Aham Brahmasmi, then we can again think about our enormous potential. So you have covered all these things in this session. So thank you very much. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat. My pleasure, ma'am. My pleasure. And I'll assure you one thing: whenever I'll come to your university, being an NLP researcher myself, I have created certain modules. वो live modules होते हैं, हम आपके साथ apply करेंगे. If anyone is suffering from any negative thought, problem, phobia, fear है, मैं आपके साथ live session में उसको ठीक कर दूंगा. So we can do that. And वो कौन करता है? मैं नहीं करूँगा. Basically, I'll direct you. See, all powers of negativity and positivity lies within us, and we are actually the controller of these things. We being expert, I being expert can guide you. मगर ठीक आपको ही करना है और सारी चीजें ठीक हो जाती है. और सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूसरे से मिलती है. सक्सेस चीज वही होती है जो हम बनाते हैं और हम क्रिएट करते हैं. जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा उस दिन कोई भी आंसर Very true. Very true. Thank you very much for giving me opportunity to be here. Thank you very much. Pleasure is always mine. And with the prayer, I would conclude the session. Sarve bhavantu sukhine, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashyit durbhag bhave. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you all.